નમસ્કાર ભાઈઓ અને બહેનો, જય હિન્દ, જય ભારત. ભારત એકેડેમી ભાવનગર ખાતે હું અમીર રાઠોડ આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. 2014 પછી સૌ પ્રથમવાર જીપીએસસી દ્વારા આરએફઓ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસરની ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. ટોટલ 51 જેવી જગ્યાઓ છે અને લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે આનું પરીક્ષા લેવાની ત્યારે એનો ક્રાઇટેરિયા, એનો સિલેબસ, એની ફોર્મની મેથડ બધું અલગ અલગ હતું. અને હાલમાં આરએફઓની ભરતી બહાર પડી છે અને સરકારે જે માર્ગદર્શક પુસ્તિકા આપી છે એ મુજબ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને ઘણું બધું કન્ફ્યુઝન છે કે આનો સિલેબસ શું છે, આના ફોર્મ કોણ કોણ ભરી શકે, કોને વિશેષ ફાયદો થાય, ઓપ્શનલ વિષય વિશે શું કહેવાનું છે, આવી બધી ઘણી બધી માહિતીઓ છે. તો પહેલી એક જ વાક્યમાં તમને કહી દઉં કે જીપીએસસી ક્લાસ 1-2ના સિલેબસને આધારિત સિલેબસ છે, માઇનોર ચેન્જીસ છે. અને કારણ કે અત્યારે તોમર સર અમારી સાથે જોડાયેલા છે તો એનીથી ગજાવાળું આજે એવું અમારી ટીમમાં કોઈ નથી કે આનું સુપર ડુપર હિટ એનાલિસિસ તમને આપી શકે. ખરેખર એનાલિસિસ બનાવવાની ગણતરી મારી જ હતી, પણ મને એમ હતું કે તોમર સર દિવાળીમાં ઘરે વ્યા જાય. પણ વિચારો તમે, ભલે એના અભ્યાસક્રમ પૂરો કરવાનો એનો જનૂન જ તે. આજે હું આ વિડીયો બનાવું છું, દિવાળીનો દિવસ છે, સર વિડીયો શૂટિંગ જ કરે છે ભાવનગર, બરોબર, અને આપણે બધા તહેવારો કરતા હશું ત્યારે એ શૂટિંગ કરતા હશે. ઓકે, તો તોમર સરે તમારા લોકો માટે 3 વિડીયો બનાવ્યા છે, અથવા તો 3 વિડીયો બનાવીને તમારી સમક્ષ રોજ એક વિડીયો મૂકવાના છે આરએફઓને સંબંધિત માહિતી માટે. 3 વિડીયો જોઈ લ્યો. આરએફઓ વિશે તમારે કોઈને ફોન કરીને નહીં પૂછવું પડે કે સાહેબ આના વિશે માહિતી આપો. 3 વિડીયોમાં પહેલો વિડીયો એ છે કે કોણ કોણ ફોર્મ ભરી શકશે, કેટલી જગ્યા છે. લાસ્ટ ટાઈમ જે 2014નું હતું એના મેરિટની આમાં કોઈ ચર્ચા નથી કરવાની, કારણ કે 5 વર્ષનો સમય વીતી ગયો છે. અને હવે પછી જે જીપીએસસી પ્રશ્નો પૂછવાની છે એ 2014 જેવા નથી પૂછવાની. હવે એવું નહીં પૂછે કે નીલમબાગ પેલેસ ક્યાં આવ્યો છે, હવે તો એ બહુ ડીપમાં જાય છે. હવે દ્રવિડ શૈલીની માહિતી પૂછશે, હવે નાગર શૈલી વિશે પૂછશે, સોમનાથ મંદિર કઈ શૈલીનું છે એવું પૂછશે. તો ઇન શોર્ટ ટૂંકમાં પ્રશ્નો અઘરા નીકળશે, બરોબર. જે સહેલા પ્રશ્નો હશે એ વિષય વસ્તુ તમારાથી અજાણી હશે. દાખલા તરીકે લાસ્ટ ટાઈમ પીએમાં સવાલ હતો કે દરિયાઈ માતા, દરિયામાં વહાણ જે ખલાસીઓ હોય છે એ કયા માતાજીની પૂજા કરે છે, વહાણવટી માતા અથવા શિકોત્રી માતા જવાબ આવે. તો એ એક જ વાક્યનો ફેક્ટ સવાલ છે, જનરલ નોલેજ જેવો, પણ એ દિશામાં કોઈ દી વિદ્યાર્થીએ વાંચ્યું હોય નહીં એટલે અઘરો સવાલ બની જાય. સોમનાથ મંદિર વિશે ચંદ્રએ સ્થાપના કરીને આ તેલ સુખડથી કોણે બનાવ્યું, ચાંદીથી કોણે બનાવ્યું, બધું આપણે જાણી લીધું હોય. ભાઈના નકશીકામ કઈ શૈલીમાં જેવી પૂછ્યું હોય તો દાંડિયા ડૂલ થઈ જાય. પ્રશ્નો હવે આવા પૂછે છે અને આ લેવલનું અમે તમને ભણાવીએ છીએ. તો પહેલાં તો આરએફઓનું ફોર્મ કોણ ભરી શકશે, કોને કોને શું ફાયદો થશે, એ એક વિડીયો આવશે. બીજા દિવસે વિડીયો આવશે GS1 ને GS2 200 માર્કનું છે, 400 માર્કના પેપર પ્રિલિમમાં આવશે. તો GS1નો જે ટોપિક છે એનો અભ્યાસક્રમ શું છે, મોસ્ટ ઓફ જીપીએસસી જેવો જ છે, પણ વિશેષ જ્યારે સાહેબ વાત કરશે તમને લોકોને બહુ મજા આવશે. અને ત્રીજો વિડીયો સૌથી મોસ્ટ આઈએમપી બની રહેશે GS2નો. જીપીએસસીની અંદર 4 ટોપિક આપે છે 50-50 માર્કના, આની અંદર 5 ટોપિક આપ્યા છે 40-40 માર્કના. હવે એટલું કીધું એટલે જેવા તેવાને ખબર, જેવી તું સમજણ પડશે એ લોકો તરત જોવા જશે કે 5મો ટોપિક વધારાનો કયો છે. એનું નામ વાંચી લેવાથી ફેર નહીં પડે, એ ટોપિક શું છે, કેવા પ્રશ્નો આવી શકે છે, એની ડીપમાં ચર્ચા અથવા તો ડીપમાં તમે તોમર સરનો આ વિડીયો જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. તો હું ફક્ત તમને માહિતી દેવા આવ્યો છું કે આજ પછીના 3 દિવસ લગી તમે આરએફઓ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી શકશો. અને સાથે સાથે કારણ કે તોમર સરનો જે આ જીપીએસસી યુપીએસસીનું જે પેકેજ છે એ એકદમ આને સુટેબલ, એટલે કે 101% સુટેબલ છે. તો આરએફઓની પીઆઈની 1-2ની તૈયારી કરતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે ભારત એકેડેમીના બંને પેકેજ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. એના વિશે સુપર ડુપર હિટ દિવાળી સુધીની ઓફરો અમે નાના માણસોએ આપી દીધી. अब बड़े साहब आएंगे बड़ी वाली ऑफर देने, જે એના પેકેજ માટે એને જે મન ફાવે એ બોલી શકે છે. એણે કાંઈ મને કીધું નથી, સરપ્રાઈઝ છે. તો તમને બધાને જો ખરેખર ભણવાની ઈચ્છા હોય, ધગશ હોય અને સારામાં સારું કન્ટેન્ટ જોતું હોય, આજ ગુજરાતમાં મારે એમ કહેવું પડે કે હું તમને સારું ભણાવીશ, મારી એચિવમેન્ટ આ છે, મારી ઉપલબ્ધિ આ છે, પણ રજનીશસિંહ તોમર સાહેબ એક જ એવી વ્યક્તિ હશે કે જેનો અનુભવ અને એનું વિષય વસ્તુ
કાફી છે, એનું નામ કાફી છે. અને એ જ્યારે મહેનત કરાવતા હોય તો મહેનત કરવાવાળો વિદ્યાર્થી સારી એવી સફળતા મેળવતો હોય છે. તો સાહેબને વિનંતી કરીશ કે હવે આવીને આરએફઓ વિશે આજે પહેલો વિડીયો, કાલે બીજો અને ત્રીજો વિડીયો તમને લોકોને સરસ મજાના વિડીયો આપી દે. અને જે મન ફાવે તમને લોકોને જે દિવાળીની ભેટ આપ્યું હોય, સાહેબની જેવી ઈચ્છા, પછી તો રાણો રાણાની રીતે. ઓકે, મળીએ તો જય હિન્દ, જય ભારત. હવે આપણે સાંભળશું તોમર સરને આરએફઓના ફોર્મ ભરવાથી માંડીને ઝીણી ઝીણી પ્રાથમિક તમામ બાબતો માટે. મળીએ. नमस्कार दोस्तों, भारत डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है. हमीर के द्वारा जो अभी आप एक आरएफओ के बारे में, जिसको कहते हैं शुरुआती वक्तव्य आपने सुना, और वो जिस जोश के साथ आपके सामने इस आरएफओ के प्रोग्राम को रखने जा रहा है यूट्यूब पर, और उसके लिए जो जिम्मेदारी मुझे दिया, उसके लिए हमीर का तहे दिल से धन्यवाद. और ये जिम्मेदारी हमीर ने मुझे दिया तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसको मैं अपने हिसाब से अच्छे तरीके से पूरा करूं. तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं. आज अपना विषय है गुजरात जाहिर सेवा आयोग. हम बीच में खड़े हो जाते हैं. आरएफओ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के बारे में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि उसका अभी फॉर्म निकला है. हम सभी जानते हैं कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का जो है एग्ज़ाम काफ़ी लंबे समय बाद हो रहा है. पिछले एग्ज़ाम में भी मेरे क्लास से सीट तो उसमें हमेशा कम ही रहता है. 22-24 सीट होने के बावजूद 3-4 लोग पास किए थे. हाँ, पिछले बार वाले में एसीएफ मेरे यहाँ से नहीं बन पाए थे, लेकिन आरएफओ में 3-4 लोग पास किए थे. तो पिछले परीक्षा के पैटर्न और इस परीक्षा के पैटर्न में बदलाव आ चुका है. उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने अपने इस लेक्चर को 3 भागों में बांटा है. कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, कि आप इस 3 वीडियो को देखने के बाद परीक्षा से रिलेटेड आपको कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा. तो आज के इस लेक्चर में आपको हम क्या बताने जा रहे हैं, सेकंड वीडियो में क्या होगा और थर्ड में क्या होगा. तो पहले आज जो आपको बताने जा रहे हैं उस पर से पर्दा हटाते हैं. परिक्षेत्र वन अधिकारी वर्ग 2 आरएफओ जाहिरात संबंधित सामान्य माहिती, यानी जीपीएससी के द्वारा ये जो जाहिरात निकाला गया है, और इस जाहिरात में जो ये 13 पेज का जाहिरात है, जिसमें 2 पेज इंग्लिश है और 11 पेज गुजराती है, यह क्या कहता है, एक एक चीज आपको समझाएंगे आज जाहिरात से रिलेटेड, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए. ये स्पेशली रिमोट एरिया के लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा. इसके बाद जो मेरा सेकंड वीडियो आएगा उसमें होगा प्रारंभिक परीक्षा में. ये परीक्षा 3 चरणों में है, आप सभी जान रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू. तो प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस है उसका पेपर 1, एक पेपर का एकदम डिटेल्स एनालिसिस आपको करके लाएंगे कि क्या आपको पढ़ना है. क्योंकि इसमें कई ऐसे लड़के भी फॉर्म भरेंगे जो हो सकता है जीपीएससी क्लास 1-2 ना देते हों, लेकिन साइंस फील्ड से होने के कारण ये देने का इच्छा रखते हो. और तीसरा वीडियो हमारा जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो जीएस 2 के साथ साथ जो स्पेशल 1 वाला जो सिलेबस है उसको पूरा एलिबरेट करेंगे आपको,
और ये तो ऑन रिकॉर्ड होगा और देखिएगा कि ये प्रश्न आपको उस तरह से दिखता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब आज हम लोग, क्योंकि पहले बेसिक जानेंगे तो ही ना आगे समझ में आएगा, पहले फॉर्म तो भरें। फॉर्म भरते समय जो मेरे मन में मुंजवन होता है कि हम अगर मान लीजिए गर्ल्स हैं तो ये जैसे SC गर्ल्स के लिए इसमें कोई भी जगह है ही नहीं, 0-0, तो वो क्या करेंगे। ऐसे कई माइन्यूट इसके अंदर बात है जो आप नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ते हैं, उसको मैं समझाऊंगा और जिससे आपको फॉर्म भरते समय कंप्लीट एनालिसिस होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लाइन जो इसमें लिखा है, जाहिरात क्रमांक 24/2021, यानी अब अपने दिमाग में बिठा लेना है कि अगर हम RFO का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें कुछ भी सर्च करना है तो वो इसी पर करना है। जाहिरात क्रमांक हमारा ये है। अगर हम RFO का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें कुछ भी सर्च करना है GPSC के जाकर के साइट पे, तो ये होगा जाहिरात क्रमांक 24/2021। 2021 का ये 24वां जाहिरात है, बस ऐसे समझना है GPSC का, इसीलिए ये है 24/2021। दिमाग में सेट कर लेना है कि हमें GPSC के साइट पर अगर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए कुछ भी जानना है तो हम जाहिरात क्रमांक 24/2021 खोजेंगे, हमको मिल जाएगा। या सरकार से कोई इंफॉर्मेशन, GPSC से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इस क्रमांक से ले सकते हैं। सेकंड देख लीजिए, गुजरात सरकारना वन અને पर्यावरण विभाग हस्तक नी, यानी कि आप जब पास करके काम करने जाएंगे तो गुजरात सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के नीचे काम करेंगे। चलिए दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कुल 51 उम्मीदवारों पसंद करवा माटे ऑनलाइन अर्जी मंगाववामां आवे छे। हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट हुआ है। ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं, प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी ऐसे ही पढ़ के खोजिएगा, आंसर मिलेगा। तो मेरे लिए पहला या मेंस का आंसर लिखते समय ऐसे ही खोजिए कि किस चीज को लिखने के लिए कह रहा है। तो जाहिरात क्रमांक 24/2021 पास करेंगे तो कौन सा विभाग के नीचे काम करना होगा, वन एवं पर्यावरण विभाग। और टोटल सीट कितना है, 51। और चौथा पॉइंट, ऑनलाइन अर्जी हमको करना है, ऑफलाइन कुछ नहीं। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। एकदम हमारा नेचर है कि एकदम बेसिक से शुरू करके हम लास्ट तक जाते हैं किसी भी विषय में। अब क्या कहता है, आ माटे उम्मीदवारे http://ojas.gujarat.gov.in पर, यानी ऑनलाइन फॉर्म की अर्जी जो होगी वो कहां होगी, तो हम जा करके खोजेंगे https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in। ये है मेरा पहला पॉइंट कि उस साइट पे जाके खोजेंगे। कब से कब तक, तो तारीख 10 नवंबर 1 बजे दिन से ये फॉर्म भराना शुरू हो गया और तारीख 1/12 यानी 1 दिसंबर तक आप 1 बजे तक भर सकते हैं। यानी 10 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर के 1 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और पसंदगी की प्रक्रिया एक स्पर्धात्मक परीक्षा के द्वारा ही होगी, यानी आपको इसके लिए कंपटीशन ही देना होगा। तो साइट का नाम मालूम चल गया, https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in। 10/11 से 1 बजे से ये फॉर्म निकला है, 1/12 1 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद आपको एक स्पर्धात्मक परीक्षा देना होगा। आज अंतिम तक जो लड़का टिकेगा
उसको भारत डिजिटल क्लास में जो मेरा कोर्स है उसमें वो जाहिरात करने जा रहे हैं। आपने मेरे पहले हमीर का भी सुना है, वो जाहिरात करने जा रहे हैं कि आप जो है सोच भी नहीं पाएंगे। तोमर सर कभी भी फीस कम करने के मुद्दे पे कभी नहीं सहमत होते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि फाइनेंस इज द फ्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वित्त जो है, नाना जो है, वो प्रशासन की ईंधन है। अगर फाइनेंस ही नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाया जा सकता है। तो तोमर सर सब कुछ सोच करके जो आइडियल होता है वही फी रखते हैं हमेशा, चाहे लड़का उनके यहाँ पढ़े नहीं पढ़े, कम पढ़े ज़्यादा पढ़े, उनको उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज तोमर सर, हाँ, तोमर सर के क्लास में अगर कोई एकदम बिल्कुल ब्लाइंड लड़का आ जाता है, शारीरिक रूप से अशक्त में, कोई बिल्कुल गरीब घर का आ जाता है, मौखिक नहीं मानते हैं, पता लगाते हैं तोमर सर, तो उसको फिर फ्री में भी पढ़ा देते हैं। दोनों रूप है इनका। लेकिन वुडलैंड का जूता पहन के 2000 फीस भरने कोई आता है तो उसको माफ नहीं करते हैं तोमर सर, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आज जो जाहिरात करने जा रहे हैं वो आप उम्मीद नहीं करेंगे कि भारत डिजिटल क्लास पर मेरे पैकेज में इससे नीचे अब कुछ आ सकता है। अब कभी नहीं आएगा इससे नीचे, यानी जो मिले तो जो देसी भाषा में बोलते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है ये बात, लेकिन बोल रहे हैं कि लूट सको तो लूट लो। इसके नीचे कभी अब जाहिरात नहीं आएगा। अगर आया भी तो ये बेस लाइन ही हमेशा होगा, क्योंकि वो है फाइनेंस इज द फ्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपको मौका मिलेगा। मेरे 4 पैकेज का महत्व बता देते हैं। इस परीक्षा में भी कम से कम 200 मार्क आपको कवर करेगा वो 4 विषय। 160 के नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और तब आपको बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, नेक्स्ट क्लास का में वही सब आपको बताएंगे कि इसका मेरिट कितना जा सकता है। और मैं इसीलिए रुक रुक के ये वीडियो बना रहा हूं कि जरा बताएं तो लोग अभी कि मेरिट कितना जाएगा। पिछला साल का परीक्षा देख के बताना बहुत आसान होता है। और तब देखिएगा कि किसका क्या कहते हैं फोरकास्टिंग सही होता है। आज अब बताएं कि कभी कि कितने प्रश्न आ सकते हैं, देखिएगा मैं वही सब बताऊंगा और देखिएगा कि परीक्षा में वो एक्यूरेट बैठता है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, वो तो अगले क्लास में होगा। बट मेरे 4 सब्जेक्ट का आज बता रहे हैं कि 160 के आसपास मेरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। और जिस तरीके से हम लेक्चर ले रहे थे उस वक्त नहीं पता चल रहा था। अब जब मैं बताऊं अपने उस ऐप में, आगे मैं बताऊंगा, एक लाइन खाली बता देता हूं। 60 घंटे का क्लास अभी तक में हम खाली पॉलिटी में अकेला लिए हैं और हम संघीय मंत्री परिषद तक ही खत्म कर पाए हैं। अभी भी राज्यसभा से आगे का बाकी है। 60 आवर्स लेक्चर हो चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसलिए लास्ट वाले को ही लाभ मिलेगा, अंतिम में ही बोलेंगे। और जो इसको देखिएगा ये अंतिम है तोमर सर के द्वारा, अब इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज आप अभी पहले फॉर्म के बारे में जानिए। अब देखिए आगे आपके लिए महत्व का तारीख क्या है। बगल में संभवतः हम इसलिए लिखे हैं कि उन्होंने अपने जाहिरात में सब तारीख के बगल में संभवतः लिखा है, तो संभवतः रखना पड़ेगा। सबसे महत्व का तारीख तो आपके लिए ये नहीं, सबसे महत्व का तारीख तो ये है जो अभी चल रहा है। 1 दिसंबर 2020 का 1 बजे ये लास्ट तक मिल रहा है आपको फॉर्म भरने के लिए। ये पहला इंपॉर्टेंट तारीख है। 10 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर के बीच का समय ये पहला इंपॉर्टेंट डेट है कि पहले तो पर्चा भरिएगा तो न चुनाव लड़िएगा। तो आप पहले अपना फॉर्म भरिए। आगे दूसरा इंपॉर्टेंट तारीख है कि हम सभी जानते हैं कि पीआई जीपीएससी क्लास 1-2 या ये आरएफओ जो भी क्लास 2 एग्जाम है, अभी सब बताएंगे मार्क्स के साथ आगे।
कि कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। हम सभी जानते हैं, अभी फिलहाल इतना जानिए कि आरएफओ का एग्जाम 3 तबक्का में होगा। पहला तबक्का प्राथमिक कसौटी या प्रीलिमिनरी एग्जाम कहलाएगा, जो कि 400 मार्क का है। इस पर डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आएगा, आज केवल फॉर्म का जहर आपके लिए। दूसरा है मुख्य परीक्षा, जो 850 मार्क का है, जिसमें लिखित परीक्षा 750 मार्क का है। और हम तो इंटरव्यू नहीं कहेंगे, लेकिन आपके समझने के लिए इंटरव्यू लिखे हैं, 100 मार्क का इंटरव्यू होगा। ये 3 चरणों में एग्जाम है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट अब प्राथमिक कसौटी का कौन है, लिखित परीक्षा का कौन है, इंटरव्यू का कौन है, और बाकी टोटल इसके बारे में चर्चा वीडियो 2 में करेंगे। आज केवल फॉर्म में क्या है। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम 4 अप्रैल को होगा, यानी आज हम धनतेरस के दिन ये वीडियो शूट कर रहे हैं, यानी आज जो है 12 तारीख है। तो हमारे पास 12 दिसंबर, 12 जनवरी, 12 फरवरी, 3 महीना, और लमसम अगले महीने में 8 दिन कम, यानी 22 दिन है। 3 महीना 22 दिन। प्रीलिमिनरी परीक्षा का परिणाम आएगा जून महीने में। ये दूसरा इंपॉर्टेंट डे है आपके लिए, तारीख जून 2021। अब प्रीलिम्स एग्जाम होगा 4 अप्रैल। 3 महीना यानी 90 दिन, अब 22 दिन और जोड़ दीजिए तो 112 दिन में पार्ट 2 जब आएगा तब सिलेबस देख लीजिएगा बढ़िया से, और तब सोचिएगा कि हम क्या करेंगे उसमें। मुख्य लिखित परीक्षा जो है वो 24/7, 25/7 और 1/8 को है, क्योंकि परीक्षा में 2 पेपर, एक गुजराती एक इंग्लिश है मुख्य परीक्षा में, और 3 पेपर जीके है। तो 5 दिन के लिए 2 सीटिंग यहां, 2 सीटिंग यहां और 1 सीटिंग यहां, या 1 सीटिंग यहां, 2 सीटिंग यहां और 2 सीटिंग यहां, ऐसे करके सेट किया जा सकता है। 24 जुलाई 7वां महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। प्रीलिम्स का रिजल्ट आना है जून में, यानी पीटी पास होने के बाद मेंस के लिए कुछ नहीं बचता है आपके पास। 1 महीने के अंदर देख लीजिए, 24/7 तो जून कहाँ है, तो 21 जून को रिजल्ट दे देगा, ये जरूरी नहीं अब किस दिन देगा, 1-1.5 महीने ही है। यानी प्रीलिम्स का एग्जाम इतना अच्छा जाना चाहिए। यही स्ट्रेटेजी बताएंगे अगले वाले वीडियो में, कि जून की आप 5 जून अप्रैल को, ज्यादा से ज्यादा 8 अप्रैल को, या मैक्सिमम 10 अप्रैल को कंफर्म होना होगा आपको। आपकी पीटी इतनी अच्छी जानी चाहिए। ये सब सेकंड वीडियो में है कि आप मेंस दे रहे हैं। जो लड़का 10 अप्रैल को समझ पाएगा कि मैं यह एग्जाम दे रहा हूं, तो उसको 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई, तब उसको 3.25 महीना मिलेगा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, और तब जाकर के वो कुछ कर सकेगा। इसलिए अभी प्रीलिम्स को इतने अच्छे से तैयार करना है कि हम नेक्स्ट डे अपने को कंफर्म कह सकें कि मेरा जो है प्रीलिम्स निकल रहा है। वो लटक के पास वाला लड़का से मेंस नहीं निकलेगा इसका, क्योंकि 1 महीने में कुछ नहीं कर पाएगा, और लटका हुआ लड़का बिना रिजल्ट के आगे पढ़ नहीं पाएगा। और ये कोई मेन स्ट्रीम का एग्जाम है नहीं कि क्लास 1-2 है, यार पढ़ो ना, नहीं होगा तो अगला बार फिर फार्म आ रहा है 22 में, पढ़ो नहीं यार, नहीं तो फिर फार्म आ रहा है 23 में। यहां देख रहे हैं 4-4 साल में आ रहा है। अगर आपका ये आरएफओ गया और आपको अगर ये गोल है, तो पता नहीं अगला आरएफओ कब आएगा। इसलिए अगर बनना है, सपने देखने बहुत अच्छे हैं, सब ख्वाब तो जरूर देखिए, बस सुबह उठते ही उसको पूरा करने में लग जाइए। और मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम है अक्टूबर में,
और तब रूबरू मुलाकात जो है नवंबर 2021 में, यानी कि दिसंबर तक 21 में आरएफओ बनने का पूरा चांस है। तो ये 1 साल आपको सब कुछ छोड़ करके इसके पीछे लगना होगा, क्योंकि सीट है मात्र 51। सब बताएंगे भी आपको कि सीट 51 पर होने से प्रीलिम्स में क्या असर पड़ेगा, कितना नंबर लाना चाहिए। जो प्रोजेक्ट करेंगे ना, हम ऑन कैमरा कर रहे हैं, आपको कहेंगे कि हमसे बात करिएगा पीटी रिजल्ट के बाद, देखिएगा कि वहीं के आसपास होता है कि नहीं, आसपास। तो आपको 4 अप्रैल दिमाग में गड़ाना है कि वीडियो 2 में जो सर आंकड़ा बताएं कि ये सेफ होगा इतना मार्क लाना, तो उतना मार्क से ज्यादा 10 नंबर और हो तो हम 5 अप्रैल को कंफर्म होंगे, और वो नहीं होंगे तो मेंस गिर जाएगा। फिर 1 महीने में जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उस लड़के का नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ें। डेट आपने देख लिया है। अब जगह के बारे में देखें। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर 2 में कुल जगह है 51, जो आप भी जान रहे हैं। 51 में बिन अनामत है 22, केवल और केवल 22 हैं जनरल कैटेगरी के लड़के जो पास करिएगा पूरे गुजरात से आरएफओ बनिएगा। 5 लड़के हैं जो ईडब्ल्यूएस में आइएगा कोटा से। फाइनल में देखना, पीटी करके क्या करिएगा, फिर वही वापस पीछे। 11 लोग होंगे जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, वो बनेंगे आरएफओ, और 1 एससी और 10 एसटी। 52 5 22 5 27 10 37 1 38 1 39 10 49 49। अब जो है इधर आइए, ये जो बिन अनामत 22 है, इनमें से बिन अनामत सामान्य महिला जो है वो 7 आएगी। ईडब्ल्यूएस में 1 महिला आएगी, ओबीसी 3 आएगी, एससी महिला के लिए आरक्षण नहीं है, और 3 एसटी के लिए, महिला के लिए 10 में से। यह है आपका सीट। इसके बाद नीचे लाल से लिख दिए हैं, जरा देख लीजिएगा। जग्यानी फरजोने ध्यान राखीने आ जग्याओं माटे कोई विकलांग उम्मीदवार अर्जी करी सकसे नहीं। यानी इसमें कोई भी दिव्यांग फॉर्म नहीं भरिएगा, पहले ही इसमें कह दिया गया है। फिजिकली हैंडीकैप्ड आप इसमें नहीं भरिएगा। सब लिखा है, लेकिन मेरा काम है कि आज आपको डिस्कस कर दें सारा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, यहां से क्लियर हो गया। अब परीक्षा में प्रवेश माटे कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन कैंडिडेट हो सकता है। भारत नो नागरिक, क्लियर बोल रहे हैं, भारत नो नागरिक, पूरे भारत का कोई भी नागरिक इस फॉर्म को भर सकता है। ये फार्म में लिखा हुआ है। गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, कहीं का भर सकता है। और परीक्षा इंग्लिश मीडियम में है, इसलिए एक बार सोच लीजिएगा। मान लीजिए वो लड़का बाहर का हो, उसका प्रीलिम्स नहीं, मेंस नहीं निकले अगर गुजराती एक पेपर के कारण, लेकिन प्रीलिम्स में आपको आके टफ कंपटीशन दे सकता है। और आज के ई युग में सब इंफॉर्मेशन सबके पास होता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का कोई भी नागरिक, ये लाइन मैं बार बार किस लिए कह रहा हूं कि मैं जब क्लास में आज से 15 साल पहले कहा करता था, 17 साल पहले, कि तैयारी 1 करो आईएएस का, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन देना है, एमपीपीएससी, और वहां डीवाईएसपी बनना है, राजस्थान पे आक्रमण करना है, वहां मामलतदार बनना है, तो हंसता था मेरे ऊपर कि सर वहां दे सकते हैं। अरे आर्टिकल 16 जो नहीं पढ़ा है ठीक से, वो ये गप करेगा। जब 16 में कह रहा है कि अवसर की समानता है सरकारी नौकरियों में, हाँ आप एमबीबीएस में वहां जाएंगे कि नहीं, वो वहां का सरकार तय करेगा। भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य में जाके फॉर्म भर सकता है और किसी भी राज्य में जाकर के बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा।
तो आज से एक नया चीज, गुर्जर प्रतिहार बनना है, एकदम रौंद देना है या चोल बनना है कि बंगाल की खाड़ी को झील बना देना है, सरोवर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल जो निकलता है, उत्तर प्रदेश, सब में भरना है। हम भी भरेंगे सब में, क्योंकि वहां भी भारत का नागरिक ही लिख कर आता है। नेपाल नो प्रजाजन नहीं आएगा, चिंता मत करिएगा, लेकिन नेपाल का भी सिटीजन ये फॉर्म भर सकता है। भूटान नो प्रजाजन वो भी आके भर सकता है। अथवा ये कानून, भारत में कायमी बसावट करवाना इरादा थी, तारीख 1 जनवरी 1962 पहला भारत में आवेला तिब्बत ना निर्वासित, तिब्बत का निर्वासित जो यहाँ कायमी बसावट के इरादा से आया हो 1 जनवरी 1962 के पहले, वो भी फॉर्म भर सकता है। आज आपको ऐसा इंफॉर्मेशन देंगे ना कि जो अंतिम तक देखेगा लड़का, वो जीवन में अब दोबारा कुछ नहीं पूछेगा किसी से, उसको सब इंफॉर्मेशन होगा और वो सामने वाला क्लास वाला से पूछ के समझ लेगा कि वो बेवकूफ है सही है। ये तो हम लोग पहले से बोला करते थे बिना देखे, लेकिन आज आने का मूल हेतु यही है कि पहले फॉर्म समझिए कहता क्या है। अथवा और भी लोग हैं जो फॉर्म भर सकते हैं, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अन्य पूर्व अफ्रीकन देश, अथवा केन्या, युगांडा, वियतनाम, जाम्बिया, मलावी, जायर, इथोपिया, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया देशोंमांथी સ્થળાંતરણ કરી ભારતમાં કાયમી બસાવટ કરવાના ઇરાદાથી આવેલ મૂળ ભારતીય વ્યક્તિ હોવો જોઈએ, પબ્લિક ઇન્ડિયન ઓરિજિન હોना चाहिए। परंतु ख थी च सुधीना प्रकार मानी व्यक्तियों तेमने गुजरात सरकार पासे थी पात्रता प्रमाण पत्र मेलवी होय। मैंने ऐसे व्यक्ति को, यानी क के को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली सिटीजन ऑफ इंडिया बताना है। ख से लेकर के च तक वाले व्यक्ति को गुजरात सरकार से नियुक्ति कर सकते हैं हम गुजरात सरकार में। इसके लिए पात्रता प्रमाण पत्र अगर उसको मिला हो तो ही वो फॉर्म भर सकता है। अब थोड़ा शांत हुए होंगे आप, नहीं तो नेपाल, भूटान सब आ जाता है। लेकिन भारत का नागरिक कोई भी हो सकता है। हम बाहर को नहीं डरा रहे हैं आपको बाहरी से, आप में आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं कि आक्रमण करिए। राजस्थान, क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश, कम से कम 2 तो पड़ोसी है, वहां तो जाके हम फॉर्म भर सकते हैं। नया नया कंपटीशन का पेपर देखेंगे, मेरा दिमाग खुलेगा। दूसरे राज्यों के साथ तैयारी करने वाले जो एसडीएम वहां बनेगा, वो हो सकता है उसके साथ हमारा सेंटर पे मुकाबला हो जाए, तब ना हम आईएएस में इक्वल आधार पे फॉर्म मैंने पास करेंगे। नहीं तो क्या होगा, वही हम 2 डिजिट भी नहीं पहुंच पाएंगे। मूल गुजराती कोई कितना भी ऐड कर ले कि गुजरात से 17 लोग पास किया, लेकिन मूल गुजराती तो 2 डिजिट में भी नहीं हो रहे हैं हम लोग। तो हम लोग उस स्थिति में हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर क्या हो रहा है वो सेंटर पे जाके नहीं देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। बात से हिम्मत करना है। और तोमर सर अपने हर में देते हैं अपने टेलीग्राम पे कि कहाँ कौन सा फॉर्म निकला है। आइए अब बताते हैं आगे। अर्जी पत्रक, अब आपके मन में होगा कि फॉर्म भरेंगे तो पैसा कहाँ जमा करना है। बिन अनामत वर्गना उम्मीदवारों, जो बिन अनामत हैं, जो तेओ पोस्ट ऑफिस में फी भरे, अगर वह पोस्ट ऑफिस में फी भरता है तो ₹100 प्लस पोस्टल चार्जेस, प्लस जो पोस्टल चार्जेज है 100 के ऊपर लगेगा वो भरना पड़ेगा। तथा ऑनलाइन फी भरे, अगर वो ऑनलाइन फी भरना चाहता है तो ₹100 प्लस ऑनलाइन चार्जेज भरवानी रहे से। इतना क्लियर लिख के सरकार देता है। हमको आपको ये पढ़ने का फुर्सत ही नहीं होता है। एक बार हम इसमें 2 घंटे लगाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम दूसरे तीसरे से फोन कर करके पूछते हैं और वहां से गलत इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि पढ़ा वो भी नहीं है। अकेला तोमर सर कोई फॉर्म आ जाए, सबसे पहले तोमर सर इसको ही एक एक लाइन पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है, उसके बाद जो है वो उस पर बात करते हैं। चलिए अगला, अनामत वर्गना उम्मीदवारों कौन कौन? आर्थिक रीते नबला वर्गो EWS, सामाजिक અને शैक्षणिक રીતે પછાત વર્ગ OBC, अनुसूचित जाति અને अनुसूचित जनजाति અને માજી સૈનિકોને ફી ભરવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવેલ છે।
इनको फी नहीं भरना। जेथी तेमने कोई फी भरवानी रहती न थी, उनको कोई फीस नहीं भरना होगा। अब अगला ये है कि कई लोग जो हैं अनामत होते हैं, वर्ग में आते हैं, लेकिन वो बिन अनामत में फॉर्म भरने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए उनका इच्छा है, तो क्या उनको फी भरना होगा? तो देखिए क्लियर लिखा है, अनामत कक्षा ना उम्मीदवारों जो बिन अनामत जग्याओं माटे अर्जी करे तो अर्जी फी भरवानी रहे से नहीं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो भले ना आप अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरने का प्रयास किए हैं तो भी आपको फी भरना नहीं है। फिर सुनिएगा, अनामत कक्षा ना उम्मीदवारों माटे जाहिरात में अनामत जग्याओं दर्शावेल ना होए। अगर अनामत कक्षा के उम्मीदवार के लिए अगर जाहिरात में जगह नहीं बताया गया है, त्या आवा उम्मीदवार बिन अनामत जग्या माटे अर्जी करी सकसे। अगर आपके वर्ग का सीट 0 बताया गया है तो आप बिन अनामत वर्ग में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप अगर अनामत वर्ग से हैं तो आपको फीस नहीं भरना है, भले आप बिन अनामत वर्ग के लिए भर रहे हैं। क्लियर हो गया? अने तेमने पसंदगी माटे बिन अनामत ना धोरणों लागू पड़ से। उसके बाद आपको बिन अनामत वाला सारा नियम लागू होगा प्रक्रिया में। कितना बढ़िया लिखा है, देखिए, जाहिरात में महिला उम्मीदवारों माटे जग्याओं अनामत ना होए। जैसे इसमें SC महिला के लिए सीट है 0। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन यही होता है कि हम पढ़ते नहीं हैं। जाहिरात में महिला उम्मीदवारों माटे जग्याओं अनामत ना होए तोपन जे ते कैटेगरी में महिला उम्मीदवारों अर्जी करी सके छे। SC महिला SC पुरुष के जगह पर भी अर्जी कर सकती है, और अगर वो चाहे तो बिन अनामत के लिए भी अर्जी कर सकती है, ऊपर का लाइन जो कहता है। ठीक है, तो अगर एक SC कैटेगरी में सीट नहीं है तो वो महिला जो अनुसूचित जाति के लिए 3 सीट है पुरुषों का, वहां के लिए भी अप्लाई कर सकती है, या उसको अगर इच्छा है कि हम 22 सीट बिन अनामत में चले जाएं तो वहां भी वो जा सकती है। क्लियर हो गया? जाहिरात में जेते कैटेगरी में कुल जग्याओं पैकी महिला उम्मीदवार माटे अमुक जग्याओं अनामत होए। जाहिरात में जिस कैटेगरी में महिलाओं के लिए जो अनामत रखा गया है, त्यारे महिला उम्मीदवारों नी अनामत जग्याओं सिवाय नी बाकी रहती जग्याओं फक्त पुरुष उम्मीदवार माटे अनामत छे तेम गणवाना नथी। मतलब यह कह रहा है कि अगर किसी सीट पर आपको ऐसा लगता है कि जाहिरात में जेते कैटेगरी में कुल जग्याओं पैकी अगर किसी सीट पर आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए वहां पर कोई सीट है, देखिए, जाहिरात में जेते कैटेगरी में कुल जग्याओं पैकी महिला उम्मीदवारों माटे अमुक जग्याओं अनामत होए। जो कुछ जगह महिलाओं के लिए रिजर्व है त्यारे महिला उम्मीदवारों नी अनामत जग्याओं सिवाय नी बाकी रहती जग्याओं फक्त पुरुष। मतलब ये कभी मत गिनिएगा कि जैसे EWS में महिला वर्ग के लिए 1 सीट है और EWS में पुरुष के लिए 5 है, तो वो 5 आपके लिए नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। आपके लिए वह सीट भी है, या आप अगर बिन अनामत में जाना चाहते हैं तो वो 22 सीट भी आपके लिए है, ऐसा भी समझना है। पिछला क्लाउज, ये क्लाउज, इसके बाद का क्लाउज, ऐसे करके। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। कहता है आ जग्याओं पर जो महिला कैटेगरी, जैसे EWS में महिला के लिए 1 जगह है, उसके सिवाय जो जगह पुरुषों के लिए है वो केवल पुरुष के लिए नहीं है। अगर उस कैटेगरी की महिला को इसके बराबर नंबर आया और वो यहां कहती है तो उसको यहां भी जगह मिलेगा। आ जग्याओं पर पुरुष तेमज महिला उम्मीदवारों पसंदगी माटे विचारणा થઈ શકે છે। पुरुष तेमज महिला उम्मीदवारों अर्जी करी सके छे। उन जगह पर दोनों अर्जी कर सकते हैं।
देखते हैं ना कितना क्लियर लिखा होता है। अरे लॉ पढ़ने आना चाहिए। दाखिला तरह देख लीजिए, उदाहरण दिया कि 10 जगहों पैकी अगर 10 जगह में 3 जगहों महिला उम्मीदवार માટે अनामत છે, अगर 10 में से 3 सीट महिलाओं के लिए अनामत है तो 7 जगह सामे महिला उम्मीदवार पन पसंदगी पामी सके છે। अगर मान लीजिए कोई कैटेगरी में 10 सीट है, उसमें से 7 सीट जो है पुरुष का और 3 सीट अगर महिला का है, तो इस 7 सीट पर भी पुरुष के साथ साथ महिला को जगह मिल सकता है। ये फार्म के पहले ये सब लिख दिया कि बाद में कोट उठ मत जाइएगा। पसंद है तो ही फार्म भरे हैं, और नापसंद है तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अगर ये लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है तो जाके कोर्ट में अप्लाई कर लीजिए पहले से। लेकिन आज जब आप इसको फॉर्म भर देंगे तो आपने ये फॉर्म पढ़कर भरा है, आप बाद में सुनवाई नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है जाहरात में मात्र महिला उम्मीदवार માટે जग्याओं अनामत होए। जाहरात में जैसे मान लीजिए कि बिन अनामत में महिला वर्ग में 7 सीट है, तो पण जेते कैटेगरी में पुरुष उम्मीदवारों अर्जी करी सके छे। उस कैटेगरी में पुरुष उम्मीदवार भी अर्जी कर सकता है। केम के अगर, लेकिन उसमें अगर होगा कि अगर उस कैटेगरी में मान लीजिए 7 सीट में उनको 3 ही महिला मिली, ऐसा होगा नहीं लेकिन कानून है, तो 4 सीट पर आपका विचार किया जा सकता है। 4 सीट पर आपको जो है रखा जा सकता है। अगर 7 में से 6 ही महिला उनको मिले तो वो एक जगह पुरुष को दे सकता है। इसलिए अगर महिला सीट भी रिजर्व है तो वहां पर पुरुष उम्मीदवार अप्लाई कर सकता है, लेकिन उनको जगह तब मिलेगा जब महिला उम्मीदवार नहीं उपलब्ध होंगी। परंतु जे जग्याओं महिला उम्मीदवार માટે अनामत होय અને તે જગ્યાઓ પર महिला उम्मीदवार पूरा पसंदगी पामे, जेटली संख्या में पसंदगी पामे तो तेमने प्रथम विचारण में लेवाना थसे। अगर महिला उपलब्ध हैं तो पहले विचार उन पर होगा इस कैटेगरी में। अब आगे बढ़ें। प्राथमिक कसौटी ना परिणाम ना आधारे प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा, अभी खाली अर्जी पत्रक चल रहा है हेडिंग में, प्रीलिम्स के परिणाम के आधार पर जे उम्मीदवारों मुख्य परीक्षा માટે काम चलाऊ सफल जाहिर करेल हसे तेवा उम्मीदवारों मुख्य परीक्षा માટે फरीथी ऑनलाइन फॉर्म भरी जरूरी प्रमाण पत्रों दस्तावेज स्केन करीने आयोग ने वेबसाइट https://gpsc.ias.gujarat.gov.in पर ऑनलाइन अपलोड करवाना हसे। ये नहीं कि आज आप एक बार फॉर्म भर दिए हैं तो अब पीटी का रिजल्ट निकल गया, प्रीलिम्स का आप पास हो गए तो अब आपको दोबारा फॉर्म नहीं भरना होगा। आपको दोबारा इस वेबसाइट पर जा करके अगर आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो वो फॉर्म में परफॉर्मा होगा, वो भर के आपको फिर से जमा करना होगा। अब आइए जन्म तारीख की बात करें। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी पर होता है और कई लोग एज गलत लिख दिए हैं। 21 साल, 20 साल उम्र है, 21 साल नहीं है। ये ओरिजिनल भारत सरकार, गुजरात सरकार का है और ओरिजिनल जो है इसमें साफ लिखा है अर्जी स्वीकारनी छेल्ली तारीख ना रोज उम्मीदवार 20 वर्ष पूरा करेल छे। कई लोग कहते हैं कि हम सेलेक्ट हो गए हैं लेकिन अपने टेलीग्राम पे 21 साल लिखते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि सेलेक्टेड के पीछे मत दौड़िए, औंधे मुंह गिरिएगा। अनुभव नहीं है, किसी तरह पास हो गया है, खींच तीर के पास हो गया है, घींच तीर के बीए पास। मेरिट नीचे जा रहा है तो निकल जा रहा है। आज भी एक इस छोटे से घटना पे सोच कर देखिएगा। चिट्ठी लिखवा लेना बहुत आसान है। कहिए ना, हम रोज एक चिट्ठी लिखवा के आपको दे देते हैं मेरे यहाँ से कौन लड़का पास किया, उससे हम ताकतवर हो जाएंगे। अरे चिट्ठी लिखवा के लड़का को दे रहे हैं तो हम 16 सिनेमा के ठाकुर हैं, दोनों हाथे नहीं, वो है जय बीरू। और यहाँ गब्बर है जिसको जय बीरू की जरूरत नहीं है।
तो ध्यान रखिएगा 20 साल ही एज है कब, जरा भी दिखाते हैं। और इंतजार करिएगा, बम्पर घोषणा होने वाला है, उससे नीचे कभी भी मेरा अब नहीं जाएगा, ये लास्ट है। तो अब जन्म तारीख सुनिए। आयोग जन्म तारीख ना पुरावा माटे एसएससी बोर्ड द्वारा अपाયેલ एसएससीई प्रमाण पत्र ज मान्य राखजे। यानी आपका जो 10वां का सर्टिफिकेट आया है उसमें जो तारीख लिखा है उसको ही ये मान्य रखेंगे। परंतु आ प्रमाण पत्र में दर्शावेल जन्म तारीख खोटी होवानु अगर किसी कारण से गलत है ये उम्मीदवार मानता है तो सक्षम अधिकारी आपेल वय अने अधिवासना प्रमाण पत्रनी प्रमाणित नकल मोकलवानी रहे से। उसका प्रोसेस है वो जाके पता करिएगा, वकील बताएगा। तो उस प्रोसेस से गुजरने के बाद अगर वो प्रमाण पत्र आएगा सक्षम अधिकारी से तो ही मानेगा, वरना आपके जो 10th के सर्टिफिकेट में एज लिखा गया डेट ऑफ बर्थ वही डेट ऑफ बर्थ मान्य होगा। अब आइए जन्म तारीख। उम्मीदवारों अर्जी पत्रक में दर्शावेल जन्म तारीख में एक बार जो आप डेट अभी लिख दिए उसमें फिर कोई फेरफार नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आज एक नोटरी करा के ला के लिख दिए, आई इंटरव्यू में कहिए नहीं हमारा जो 10वां में था वही सही था। एक बार जो आपने लिखा वही, और सक्षम अधिकारी अगर नहीं कहा है तब तो 10वां वाला सर्टिफिकेट ही माना जाएगा। अब आइए उमर अने तेमा छूटछाट। उमर जाहरात में दर्शावेल अर्जी स्वीकारनी छेल्ली तारीख ना रोज गणवामां आवशे। यानी जो आप डेट गिनेंगे वो होगा 1 दिसंबर 2020। इस दिन आपका एज कितना हो रहा है, छेल्ली तारीख नी रोज गणवामां आवशे। फॉर्म भरने के अंतिम डेट। अर्जी स्वीकारवानी छेल्ली तारीख ना रोज उम्मीदवारे 20 वर्ष पूरा करेला होवू जोईए। 19 साल, हम जान के बोल रहे हैं ऐसा, 19 साल 11 महीना 29 दिन नहीं चाले, समझ गए। 20 साल पूरा होना चाहिए और 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 35 साल एक दिन नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। 35 यानी 35 और 20 का मतलब 20। 19 साल 11 महीना 29 दिन नहीं चलेगा। मतलब कि आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसमें 20 साल अगर कहा है तो मोटा मोटी 2000 ईस्वी हो गया, तो 2000 ईस्वी तो हो गया। बट आप यदि 25 नवंबर 2000 में आपका जन्म हो तो जरा आप गिन कर देखिएगा। 25 नवंबर नहीं, अगर आपका जन्म 5 दिसंबर 2000 ईस्वी में हो तो अगर आप 5 दिसंबर 2000 ईस्वी में आपका जन्म हुआ हो और यहां हमने कहा, हमने नहीं जीपीएससी ने, कि 1 दिसंबर 2020 को 20 साल पूरा हो जाना चाहिए। तो यहां से मत गिन लीजिएगा कि 20 में 20 गया खत्म। गिनने का तरीका है, इधर 30 डेज आता है क्योंकि 30 दिन का एक महीना होता है और यहां एक माइनस किया जाता है। 30 + 1 31 में से 5 घटाइए तो आपका हुआ दिन 26। अगर आपका 5 दिसंबर 2000 में जन्म है। अब 11 में 12 नहीं घटेगा तो यहां से 1 साल इसमें माइनस करिए और यहां लाइए 12, तो 12 + 11 23। 23 में से 12 को माइनस करिए तो ये हुआ 11 महीना। और अब 19 में से 2000 घटाइएगा तो 19 दिन। तो 5 दिसंबर 2000 को जन्म लेने वाला लड़का का उम्र हुआ इस फार्म के हिसाब से 19 साल 11 महीना 26 दिन। कैंसिल, वो इलिजिबल नहीं है। यानी 1 दिसंबर 2000 ईस्वी से पहले जिसका जन्म हुआ है 2000 में, वो इलिजिबल है। और ऐसा ही एज घटा लीजिएगा, 35 वाला माइनस कर लीजिएगा। यही सब तोमर सर पहले ऑफलाइन किया करते थे, अपने क्लास में एक एक बच्चे को समझाते थे।
फॉर्म भरने से लेकर के सिलेक्शन तक साथ खड़े होते थे दोस्तों, लेकिन बहुमत बाहर निकल करके यही कहता था कि नहीं हमको कुछ नहीं करा है। हम तो थैंक यू बोलते हैं यूट्यूब वाले को कि उसने मुझे मौका दिया, और हमीर को थैंक यू बोलते हैं कि वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, ताकि मेरा भी कोई जो होता है ना कि झुंड से बाहर निकल गया है बरगलाया हुआ लड़का, अब एक शब्द नहीं बोलेगा। क्योंकि क्या हुआ वो तो तुम जो कह रहे हो तो भी गलत है, हम जो कह रहे हैं वो भी गलत है। जो सत्य है वो तो टीवी पे चल रहा है ना, या मोबाइल पे चल रहा है, देख लो कि हम हैं कि नहीं इफिशिएंट। तो इसका मतलब तुम गलत बोल रहे हो, सीधी सी बात है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यही चीज था, तोमर सर 2003 से गुजरात में इस तरह का माइन्यूट माहिती आईएएस से लेकर के सब परीक्षा का दिए हैं लड़के को। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा वर्ग मेरा समर्थक भी है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है मेरा, मैं आज खुल के बोल रहा हूं, कोई एक मेरा पास किया हुआ मामलतदार लड़का हमको फोन नहीं करता है। डिफरेंट होता है बट एक कोई नहीं होता है, और सलाह के लिए ही फोन करता है, सर आईएएस का एग्जाम देना है, बोलिए क्या करना है। तो मेरे पास एक बड़ा समर्थक वर्ग भी है, 2-4 तो कहीं भी होता है, उसको नहीं हम लोग गिनते हैं। अब आइए, अर्जी स्वीकारनी छेल्ली तारीख हो गया। अब 35 साल से जो ज्यादा एज के हैं उनको जो उम्र में छूट छाट दिया गया है, अब उसका जरा चार्ट देख लीजिए और वो एकदम दिमाग में बांध लीजिएगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो अभी ये देख रहे होंगे, वो गुजरात के बाहर के भी होंगे, लेकिन वो गुजरात में बस गए होंगे और वो भी आरएफओ देने की बात कर रहे होंगे। छूट छाट, मूल गुजरात ना, पहला शब्द पकड़िएगा, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यानी ये 4 कैटेगरी में अगर फॉर्म भरना है तो आपको मूल गुजरात का होना पड़ेगा। यानी अगर हम ईडब्ल्यूएस में आते तो हमें इस एग्जाम में नहीं मिलता, क्योंकि मैं मूल गुजरात का नहीं। एक मेरा मित्र जो बिहार का एससी लड़का है, अगर वो यहां फॉर्म भरेगा तो उसको एससी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मूल गुजरात का नहीं है। तो आप भी अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश कहीं भरिएगा तो वहां आपको एससी, एसटी, ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। भारत के परीक्षा में मिलेगा और गुजरात के परीक्षा में मिलेगा, यह ध्यान रखिएगा। उसको 5 साल का छूट है, यानी 35 + 5। अब कानून है इसलिए लिख दिया है बधू मां बधू 45 साल का मर्यादा, उससे आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आइए महिला वर्ग बात में भी पहले समझना है कि जो भी लोग उस कैटेगरी में हैं उनको 5 साल का छूट मिल गया। मूल गुजरात ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ना महिला उम्मीदवार, यानी महिला उम्मीदवार अगर जनरल की है तब तो पूरे भारत की महिला जो है, अभी आगे आएगा, अगर महिला वर्ग में छूट देना होगा तो पूरे भारत की महिला को मिलेगा। लेकिन महिला अगर महिला वर्ग के एससी एसटी में छूट लेना चाहती है जो 10 साल का है, तो ये गुजरात की होनी चाहिए, मूल गुजरात की। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस महिला को 10 साल का छूट है, बधू मां बधू 45 वर्ष की मर्यादा। अब आइए, यहां नहीं लिखा मूल गुजरात, कायदा इसी को कहते हैं बिन अनामत सामान्य महिला उम्मीदवार। अगर कोई जनरल में महिला में फॉर्म भरना चाहती है तो उसको 5 साल का छूट मिलेगा। यानी ये भारत की कोई वीमेन कैंडिडेट, कोई महिला प्रत्याशी आकर के यहां आरएफओ का फॉर्म अगर भरेगी तो उसको 5 साल का छूट मिलेगा। लेकिन किसी राज्य का अगर यहां के आरएफओ का पुरुष फॉर्म भरेगा तो उसको फॉर्म भरने मिलेगा, लेकिन उम्र में छूट नहीं मिलेगा, उसको 20 से 35 साल का होना चाहिए। और माजी सैनिक, ईसीओ, एससीओ सहित उम्मीदवार जो संरक्षण सेवा में कम से कम 5 साल जो है दिए हैं, तो उनको 3 साल का अतिरिक्त छूट मिलेगा। अब गुजरात सरकार के कर्मचारी वगैरह को जो है कोई प्रकार का छूट छाट नहीं है। और जो शारीरिक रूप से अशक्तता धरावते हैं, इसमें तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन ये सभी परीक्षा के लिए है दोस्तों, उनको 10 साल का छूट मिलेगा। अगर कोई दिव्यांग है, ब्लाइंड है, शारीरिक रूप से अशक्त है, तो वो 45 साल तक एग्जाम दे सकता है। ये हो गया उम्र में छूट छाट।
कितना चीज क्लियर किए। ऐसा ही ये एक महायज्ञ होने जा रहा है RFO, 3 बार में होगा। और यही काम ऑफलाइन में करते थे दोस्तों, क्लास में वैल्यू नहीं देता था। कौन? लड़का तो वैल्यू देता ही था। अरे ये जो लोग छड़ी घुमा के पास कराने लगते हैं फालतू बोल बोल के कि नहीं आपटला आपसे, अरे तुम ही नहीं बाल दूं मैं तुमको केटला आपसे। पहले जाके ठीक से पढ़ो फिर आगे गप करना इधर। मुझे हमेशा पीड़ा लड़कों से नहीं है, लड़कों के बड़कों से है। वो जो क्लासेस वाला जो लोग है, जो बड़ा टीचर बनने के चक्कर में लड़के का कैरियर बर्बाद। अरे नहीं आता है तो हाथ जोड़ लो ना भाई कि नहीं जीपीएससी हमसे नहीं चलेगा। हम हाथ जोड़ते हैं कि नहीं कि मेरे से क्लास 3 नहीं चलेगा, हम उसके लायक नहीं हैं। क्या दिक्कत है बोलने में? जहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, बोला कि नहीं अभी आपको हमीर कि तोमर सर के जोड़ने के बाद अब हम क्लास 2 और इसमें बहुत ताकतवर हो गए। कहां बोला हमीर आपको कि नहीं हम ही जो है करा देंगे? उसको मालूम है कि ये जो डेप्थ का चीज होगा, ये एक अनुभवी आदमी जो लंबे समय से इस फील्ड में जुड़ा है वो होगा। लेकिन क्या था अभी तक कि ये बात हम हिंदी में अपने क्लासरूम में बोलते थे, बाहर यही बड़का लोग आपको गुमराह करता था। और अब ये यूट्यूब पर है, जिसको टाइम है 1.5 घंटे 2 घंटे बैठ के सुने, उसको फार्म का एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। और यही करेंगे अगले GS1 में और GS2 में। और बार बार याद दिला रहे हैं कि मेरे पैकेज का अब आपको इससे गुणवत्ता पता लग रहा होगा कि तोमर सर किसी भी चीज को कितने झिनावट से लेते हैं। एकदम 100 घंटा संविधान है मेरे पैकेज में, तो 100 घंटा है। 100 घंटा अगर भूगोल है तो 100 घंटा है, भले न वो 4 महीना के जगह 6 महीना लग जाए, लेकिन वो खत्म ही होगा। 100 घंटा ही होगा। 80 ही हुआ, आपका परीक्षा आ गया तो 20 घंटा में क्या 100 क्वेश्चन आ जाएगा? इस 80 घंटा के कारण आप कम से कम 25 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये इसको उल्टा सोच के देखिएगा। बार बार लोग कहेगा अरे 3 चैप्टर छूट गया। अरे ये डिटेल्स पढ़ाने के कारण 22 चैप्टर में से कोई सवाल नहीं छूट रहा है। ये क्यों नहीं समझ रहे हो? लेकिन ये लड़कों के पास दिमाग होना चाहिए इस चीज का कि आधे पढ़ें लेकिन आधा से फिर कुछ छूटे नहीं। इन्हें कि सब पढ़ गया हो कुछ नहीं रहा है। जलमंडल में नदी पढ़ा दिए, वाह रे वाह, सविंदर सिंह से बड़ा आदमी। जलमंडल में समुद्र होता है तो क्या कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। कई लोग हैं अभी कि जलमंडल में नदी पढ़ा रहे हैं, झील पढ़ा रहे हैं। अरे भाई नहीं आता है तो काहे तैयारी करा रहे हो? तैयारी करो अगर नहीं आता है तो। ये कोई तरीका है? और बाद में आके अपने आप को कुतर्कों के द्वारा सिद्ध करोगे कि नहीं हम तो समुद्र शास्त्र लग कौमा लिखे थे जलमंडल। अरे सविंदर सिंह का किताब सिंपल देख लो, स्थल मंडल में नदी और उसका कार्य आता है, अपवाह तंत्र उसमें आता है, झील उसमें आता है। अरे सागर के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति तक स्थल मंडल में आता है भाई। जल मंडल का मतलब है समुद्र के भीतर का चीज पढ़ना। क्या करिएगा? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। बस यही है। अब हम क्या करें? कितना बोलें, किसके ऊपर बोलें? मने अपने में आना चाहिए बात ग्लानी की भाई नहीं आता है तो हम काहे घुस जाएं उस चीज में। क्लास 3 पढ़ाएंगे, पैसे न कमाना है जी, लड़का का करियर नहीं बर्बाद करोगे। लेकिन क्या करिएगा? अब तो हम किसी दिन आएंगे क्लास में कहेंगे आज पर्वत पढ़िए, वायुमंडल में आता है। क्यों? हवा बहती है उसको टच करती है, ये पर्वत वायुमंडल में है जी। तो क्या करिएगा? चलिए सबका अपना अपना। अब सुनिएगा, परीक्षा माटे उम्मीदवार असली अब है आपके लिए जरूरी। कौन फार्म भर सकता है? लायकात के हिसाब से। परीक्षा माटे उम्मीदवार भारतनी संसद के राज्य विधानसभाना कायदा हेठल स्थापित कोई यूनिवर्सिटी। यदि विधानसभा किसी यूनिवर्सिटी की स्थापना अपने यहां बिल पास करके किया हो तो वो सरकारी हो या प्राइवेट दोनों चलेगा। या भारत का संसद अगर ऐसा कोई यूनिवर्सिटी स्थापित किया हो तो चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट दोनों चलेगा। संसद के एक्ट द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था, या अगर कोई संस्था का स्थापना यूजीसी के एक्ट 1959 के 56 के सेक्शन 3 के द्वारा यूनिवर्सिटी के रूप में हुआ हो तो वहां से जो लोग स्नातक का पदवी धारण किए हैं ऐसे संस्था से
या तो उसके यूनिवर्सिटी को संसद के द्वारा कानून बना के स्थापित किया गया हो, या तो उनके यूनिवर्सिटी को विधानसभा के द्वारा कानून बना के स्थापित किया गया हो, या उनका यूनिवर्सिटी यूजीसी के एक्ट 1956 में जो पारित हुआ था उसके सेक्शन 3 के अंतर्गत उनका यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ हो। ऐसे विश्वविद्यालय से जो लोग ग्रेजुएशन पास किए हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, किंतु सभी नहीं। यहां ये विषय है, इतने विषयों में जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं उस यूनिवर्सिटी से वही फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन विषय? बॉटनी, केमिस्ट्री, यहां कह रहा है केमिस्ट्री पढ़े हो ना, तो केमिस्ट्री पढ़ाओ, हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हो? केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी जीव विज्ञान जिसको कहते हैं, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। एक लड़का हमसे प्रश्न पूछा था, हम उसमें कहे थे कि हम कंफर्म नहीं है, नहीं बताएंगे। अब आज सुनिए, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब कृपया फॉर्म नहीं भरिएगा, आप नहीं हैं इस लिस्ट में। BA-MS, BH-MS, MBBS, BDS, माफ करिएगा, जनता का इलाज करिए, परेशान है बेचारा ठीक ना, तो आप इधर नहीं आइएगा। उनको छोड़कर बाकी एक तरह से साइंस बैकग्राउंड वाला और इंजीनियर इस फॉर्म को भर सकता है। विषय बता दिए, फिर से पढ़ देते हैं। बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। इतने विषय से जो लोग ग्रेजुएट हुए हैं 3 प्रकार के यूनिवर्सिटी से, संसद के द्वारा कानून बनाया हुआ, विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया, यूजीसी के 1956 के एक्ट के कलम 3 के अंतर्गत स्थापित। अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर दर्शावेल पदवियों पैकी बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री नी पदवी अगर किसी को सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट, माने ये डिग्री अगर किसी को वैसे जगह से मिला है जहां सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट या सेंट्रल हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट या स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत कोई यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई हो सकता है कि जो आदमी बीएससी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री किया, अब वो तो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय से पास करेगा। मान लीजिए वो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत वो यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ हो तो भी आप भर सकते हैं, या स्टेट एग्रीकल्चर या सेंट्रल हॉर्टिकल्चर या स्टेट हॉर्टिकल्चर एक्ट के तहत अगर वो स्थापित हुआ है तो वह लड़का भी एग्जाम दे सकता है। अब सुनिएगा, जो लोग फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट्री, बीएससी फॉरेस्ट्री हैं, उनको क्या लाभ मिलेगा? प्रीलिम्स में कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए तोमर सर का पैकेज लीजिए, अब बैठ के पढ़िए, उतना डिटेल्स कहीं नहीं मिलेगा। या ऑफलाइन क्लास अगर शुरू होता है तो आइए, 160 मार्क, और बाकी और भी टीम है मेरे पास। ऑनलाइन में हम टीम को शामिल नहीं किए हैं, हम अकेले 160 मार्क वाला आपको कवर कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में उतना ही एफिशिएंट टीम मेरे पास है। मैथ रीजनिंग पढ़ाने वाले, गुजरात का कल्चर पढ़ाने वाले। अरे भावनगर में जब मेरा क्लास चलेगा, अगर ऑफ यहीं से एक शुरुआत करते हैं ऑफलाइन, तो सतीश सर ही उसमें पढ़ाएंगे कल्चर। जरा देखिए तो उनके सामने पसीना छूट जाता है कि नहीं लोगों को। हमीर ही पढ़ाएगा उसमें जो है मैथ रीजनिंग। तो टीम तो मेरे पास अब जो मजबूत टीम है वो तो छोड़ ही दीजिए उसकी बात। तो कहने का मतलब ये है कि या तो ऑफलाइन में आइएगा अगर शुरू होगा तो, और नहीं तो ऑनलाइन में मेरा 4 पैकेज लीजिए, मस्त रहिए। उसके बाद हमीर का स्पेशल मैथ ले लीजिए, अब बात कर लीजिए उन लोगों से कि नहीं हमको सतीश सर का कल्चर किसी तरह निकाल के दीजिए, या उस पैकेज का कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 7,777 है, उसमें डिस्काउंट चल रहा है, उससे आपको बाकी चीज़ मिल जाएगा। तो अगर कोई बीएससी फॉरेस्ट्री हैं, पीटी में कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उनको मेंस और इंटरव्यू में जितना मार्क मिला है उसका 10% ज़्यादा उनका नंबर गिना जाएगा। अगर कोई बीएससी फॉरेस्ट्री है
और अगर वो 750 में से 300 मार्क ले आया, सब हम सोच के ही बोलते हैं, घबराइएगा नहीं, और अगर 100 नंबर के इंटरव्यू में 30 नंबर ले आया तो 330 मार्क उसका बना, लेकिन उसको 33 मार्क और मिलेगा और वो 363 मार्क गिना जाएगा। कितना चाहिए फॉरेस्ट्री वाले, सोच के देखिए। बस लीजिए तोमर सर का पैकेज और इसके साथ भारत डिजिटल क्लास का जो वो एकदम बहुत छोटा, वो तो बहुत इजी है, और आज जो देंगे आपको हम अपना पैकेज में छूट, तो वो तो फिर पानी के भाव से वो खरीद सकते हैं। दोनों मिलाइए और शुरू हो जाइए। जय श्री राम। दूर दूर के गांव वाले लोग जो हैं, आज जो भावनगर से हैं, गांधीनगर से और अहमदाबाद, वो इंतजार करिए, अब तो गवर्नमेंट कह ही रहा है, तो जैसे ही खुलेगा शुरू हो जाइएगा ऑफलाइन क्लास। पहले प्रीलिम्स केवल निकालिए, इसीलिए कह रहे हैं कि आप 4 अप्रैल को जितना बताएंगे आपको सेकंड वाले में, सेकंड वाला जो आएगा हमारा जीएस का, उसमें आपको सब मार्क्स वार्क्स बताएंगे, उतना अगर आप ले आए तो आप 5 अप्रैल से मेंस का तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ें। बीएससी फॉरेस्ट्री वाले को तो भगवान ने दिया छप्पर फाड़ के इस परीक्षा में, 10% बहुत होता है दोस्तों। अब आइए, अर्जी पत्रक स्वीकारवानी छेल्ली तारीख सुधीમાં જે ઉમેદવારોના 20 वर्ष पूरा થયેલ હોય, 1 दिसंबर 2020 को जिस उम्मीदवार का 20 साल हो गया हो, ये पहला कंडीशन, અને નિયત લાયકાતની પદવીના છેલ્લા સેમેસ્ટર या वर्ष में हो। जो लायकात बताया गया है कि आप अगर बीएससी कर रहे हैं या बीई कर रहे हैं या बीएससी एजी या बीएससी हॉर्टिकल्चर, उसके अगर अंतिम साल में हैं या अंतिम सेमेस्टर में हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, यही कहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका जिस दिन मेंस का, प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आ जाएगा, मेंस का जो फॉर्म भरने का डेट होगा, उसके अंतिम तारीख के पहले तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। मेंस के रिजल्ट के दिन नहीं, मैं प्रीलिम्स का जब रिजल्ट निकलेगा और आप मेंस में पास होंगे, उसके बाद सरकार जीपीएससी आपको मेंस भरने का डेट देगा कि नहीं आप जो है 30 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। तो 30 जुलाई तक आपका जो है उसके अंतिम तारीख के पहले तक रिजल्ट अंतिम सेमेस्टर का आ जाना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर सीसीसी, ये यही कहता है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार इस प्रकार का लायकात नहीं धरावता है तो उसको जॉब नहीं मिलेगा। कंप्यूटर भी पहले होना चाहिए और मेंस के फॉर्म जो निकलेगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट जो निकलेगा, उसके बाद जो मेंस का फॉर्म निकलेगा, उसके छेल्ली तारीख तक यदि वो लड़का नहीं लास्ट सेमेस्टर क्लियर किया है तो भले वो मेंस दे दे, मेंस पास भी कर जाए, उसको नौकरी नहीं मिलेगा। उम्मीदवार गुजराती, हिंदी या बन्ने भाषा में पर्याप्त ज्ञान धराना हो। हिंदी भी कहता है आना चाहिए, अब तो तोमर सर से पढ़िए, गुजराती अथवा हिंदी अथवा बन्ने भाषा में। अब उम्मीदवारों के लिए लघुत्तम शारीरिक कितना है? पुरुष उम्मीदवार ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, हम तो हैं, लेकिन अब 72 मेरा बॉर्न है, 48 साल पूरा हो गया, 49 साल हो गया, 20 साल से इस टीचिंग फील्ड में है दोस्तों। अब इसके बाद क्या अनुभव आप हमसे मांगिएगा? और मैं कभी क्लास 3 नहीं पढ़ाया, 20 साल के 20 साल 13 साल दिल्ली में ओनली आईएएस पढ़ाया और गुजरात में आईएएस और जीपीएससी ही पढ़ाया। 2006 का भी पूरा प्रीलिम्स और मेंस हम पढ़ाए थे। 2001 वाले के समय जब हम 3 में आए तो उनका इंटरव्यू चल रहा था, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ाए, लेकिन 6 से मेरे पास रिजल्ट है। आज भी वो लड़का एसडीएम बन गया है, कई आईपीएस में से हो गया प्रमोशन पाके, लेकिन मेरी उनसे बात होती है। अब आइए, पुरुष उम्मीदवार 165 सेंटीमीटर, सीना फुलाए बगैर 1 से ऐसे 79, और उसके बाद कहेगा तो आप जो ये सीना फुलाएंगे ये 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का गैप आना चाहिए। ये नहीं कि अब 79 कहा लेकिन आपके पास 80 है,
ये 85 है, मान लीजिए 84 है, लेकिन फुला के आपका 86 होता है तो नहीं लेगा। गैप भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए कि फेफड़े में सांस 5 सेंटीमीटर भरने का क्षमता होना चाहिए और वजन 50 किलोग्राम हो। SC/ST पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, 76 होना चाहिए उसका, 76, 81 उसका फुला करके, उसमें प्रमाण नहीं है और वजन नहीं है। महिला उम्मीदवार 158 सेंटीमीटर, उनका जो है ये सांस खींचने वाला नहीं है, लेकिन उनका 45 केजी होना चाहिए। अनुसूचित जाति महिला 156, अनुसूचित जनजाति ध्यान रखिएगा, ST महिला, SC नहीं, ST महिला को महिला उम्मीदवार वाला ही नियम लागू होगा, SC पुरुष को जनरल पुरुष वाला 156 और उनका वजन 45 होना चाहिए। उम्मीदवार के लिए जरूरी शारीरिक जो है ये मानसिक क्षति नहीं होना चाहिए। नॉक नी, ऐसे पैर करिए तो ये दोनों पैर का ये जो घुटना है ये सटना नहीं चाहिए, ऐसे नॉक नी नहीं होना चाहिए। दौड़ने में रगड़ाएगा और शेर के सामने गिर जाइएगा, समझे ना, इसलिए नॉक नी नहीं होना चाहिए। और भी बहुत कुछ है, स्क्विंट आई नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, पैर जो है आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोस वेनस हेमरटोज नहीं होना चाहिए, फ्रैक्चर्ड लिम्स नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेबल स्किन डिजीज नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक एलिमेंट्स जो है। अब इसके अलावा आयोग द्वारा भलामन करवामा आवनार सफल उम्मीदवारों, जिसको सफल उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। अब यहाँ क्लियर नहीं किया है पीटी पछी कि फाइनल पछी, अब वो देखते हैं, लेकिन ये इसीलिए कहते हैं माइन्यूट पढ़िए। आवनार सफल उम्मीदवार हुए वन અને पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित वॉकिंग टेस्ट आप वानी रहे से पुरुष उम्मीदवार को 25 किलोमीटर जो है पैदल चलना है 4 घंटे में, और महिला उम्मीदवार को 14 किलोमीटर 4 घंटे में चलना होगा। हमें लगता है कि शायद हो सकता है कि या तो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद ही चेक कर ले, जैसे पीआई में होता है, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं किया है। वॉकिंग टेस्ट में यदि पहली बार आप असफल हो जाते हैं तो एक चांस और मिलेगा। अब आइए, पगार 39,900 पे पैक्स है, ये पे मैट्रिक्स लेवल है, ये तो बेसिक है, से लेके 1,26,000 नियम के अनुसार और जो कुछ भी मिलता है वो मिलेगा। अब आइए SC/ST के लिए कहता है कि मूल गुजरातना SC, ST, OBC અને EWS ने ही अनामत के तरीके लाभ मिलेगा। जो मूल गुजरात के होंगे, बाहर वाले को जनरल के रूप में फॉर्म भरना है। माजी सैनिक उम्मीदवार को अपने अर्जी पत्रक में विगत भरना होगा और उनको डिस्चार्ज बुक जो उनका होता है उसका नकल लेकर के लगवाना होगा। अब आइए, सामान्य वहीवट विभाग तारीख 9/7/2018 ठराव क्रमांक RES 108534333 ग 2 जोगवाई मुजब माजी सैनिकों को अर्जी पत्रक की कीमत, अर्जी फी और परीक्षा फी भरने से मुक्ति है। यहां तक हमने आपके लिए निकाला। महिला उम्मीदवार, महिलाओं की अनामत जगह के लिए जो योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुई तो उस जगह पर पुरुष उम्मीदवार, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल, ऐसा नहीं संभव है, बट अगर 14 किलोमीटर महिला चल ही नहीं पाई तो सीट तो कोई नहीं चल पाई तो सीट खाली हो जाएगा ना, तब वो पुरुष को मिलेगा। लेकिन अगर वो चल गई, योग्य उम्मीदवार में सब कुछ होता है, तो फिर उनको लिया जाएगा। परीक्षा की रूपरेखा अब सुनिए। स्पर्धात्मक परीक्षा क्रमानुसार 3 तबक्कामा योजवामा आवश्य। अब आ जाइए, पढ़ेंगे और इधर बोर्ड बदलेंगे। RFO ની परीक्षा 3 तबक्कामा योजवामा आवश्य, ये रहा 3 तबक्का। इसके बाद प्रीलिमिनरी परीक्षा मुख्य परीक्षा माटेना उम्मीदवारों पसंद करवा, यानी अगर आप इस परीक्षा में पास करते हैं तो इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, ये सिर्फ मुख्य परीक्षा को
में भीड़ जो आता है उस भीड़ को कम करने के लिए प्रीलिमिनरी परीक्षा का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े। मुख्य परीक्षा के दो भाग हैं, ब्रैकेट में देखिए, लेखित અને रूबरू मुलाकात। लेखित અને रूबरू मुलाकात। आगे बढ़ते हैं। आखिरी पसंदगी में मुख्य परीक्षा में मेलवेल गुण यानी लेखित और रूबरू दोनों को जोड़ करके तब जा करके मेरिट बनाया जाएगा। साफ लिखा है, लड़का परेशान हो जाता है। हाँ, इंटरव्यू देने के लिए मेरिट तय होगा कि मेंस रिटन में जिसको इतना मार्क आया है वही इंटरव्यू देगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में दोनों का नंबर जोड़कर तब उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। आइए अब प्रिलिमिनरी परीक्षा में क्रम। प्रश्न पत्र 1 जनरल स्टडीज, प्रश्न पत्र 2 जनरल स्टडीज। 200 मार्क का 200 मार्क का 3-3 घंटे का पक्का ये जीपीएससी ही लेवल का पेपर होगा। 3 घंटा आपको दिया है, यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम जो 400 मार्क का होगा उसके 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2। आज बढ़िया से जान लीजिए, पार्ट 2 में समय नहीं गमाइएगा। ये मैं अब ये दोबारा नहीं बताएंगे, सीधा अब इसके अंदर क्या पढ़ना है। जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2। 200 मार्क ना जनरल स्टडीज 1, 200 मार्क ना जनरल स्टडीज 2 અને 3 કલાક। इसका माने साफ है कि 200 प्रश्न होगा। आगे लिख दिया है, लेकिन इतने में समझ लेना है कि 200 प्रश्न होगा। जीपीएससी क्लास 1-2 लेवल का होगा, पीआई लेवल का नहीं होगा। पीआई से भारी प्रश्न होगा, ध्यान रखिएगा। और एसटीआई और डीवाईएसओ से तो बहुत आगे होगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, पीआई के इक्विवेलेंट हो सकता है, क्योंकि उसको 3 घंटा में 300 क्वेश्चन सॉल्व करवाता है, तो उसका पेपर भी थोड़ा इजी होता है। लेकिन यहाँ 3 घंटे में 200 पेपर है, पेपर का लेवल तबियत से होगा। अब आइए प्रश्न पत्र 1 અને प्रश्न पत्र 2 वैकल्पिक प्रकारનું અને તેનું સ્તર અને અભ્યાસક્રમ સ્નાતક કક્ષાનો થશે। जो चैप्टर कह रहा है उसका लेवल ग्रेजुएशन का होगा। हड़प्पा तो ग्रेजुएशन लेवल, वैदिक तो ग्रेजुएशन लेवल, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न पत्र 1 અને 2 નું माध्यम गुजराती और अंग्रेजी बनने रहे से अंग्रेजी मीडियम के लड़के भी ये फॉर्म भरेंगे। कंपटीशन टफ होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए एसटीआई और डीवाईएसओ इजी होता है, क्योंकि वहां केवल गुजराती लड़के फॉर्म भरते हैं। गुजराती लड़के खराब होते हैं ये नहीं, कंपटीशन आधा हो गया, अंग्रेजी वाले फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो आधा ही लोग इसमें आया। लेकिन यहाँ दोनों आएंगे। गुजराती लड़का कमजोर थोड़े होता है, हमसे ज्यादा कौन उसको सपोर्ट करता है। जो गुजराती मीडियम के लिए तो जी जान से हाजिर रहते हैं हमेशा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या हुआ कि 200 का हुआ, यही कहता है सिलेबस। अब आइए आगे। प्रिलिमिनरी परीक्षा ना परिणाम ना आधारे जाहिरात में दर्शावेल कुल जग्याओं ना आश्रय 15 गुना। यानी अगर 51 सीट बताया गया है तो 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। 15 का 15, बाकी 1, 15 × 5 = 75, 1 76, 765 लोग प्रीलिम्स निकालेंगे। एडजस्ट करते कराते कि ईडब्ल्यूएस का मेरिट भी उसके बराबर हो जाए, उसका मेरिट भी उसके बराबर हो जाए। 1200, 1500 तो बिल्कुल नहीं पार करेगा, ध्यान रखिएगा। तो जहां क्लास 1-2 में 200 जगह है, बल्कि वो तो थोड़ा ज्यादा हो गया, उसका स्ट्रेटेजी भी बताएंगे। वहां अगर 15 गुना रिजल्ट आता है तो वहां 3000 बच्चे पास करेंगे, यहाँ 1200 बच्चे पास करेंगे। इसका मेरिट उसके सामने बहुत ऊपर रहेगा दोस्तों। इसलिए ध्यान रखिएगा। आप वन एवं पर्यावरण चैप्टर में जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर वाला लड़का होगा वो आपको एक लंबा गैप दे देगा। इसलिए मेरा तीनों वीडियो देखिएगा, हम बहुत कुछ सोच करके बताते हैं। और आज इंतजार करिए, एकदम बेहतरीन जो है आपको देने जा रहे हैं ऑफर। तो चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। अब 15 गुना मुख्य परीक्षा में 5 पेपर होंगे,
गुजराती 150 मार्क, अंग्रेजी 150 मार्क, जनरल स्टडीज के 3 पेपर 150 मार्क, यानी 750 मार्क का प्रीलिम्स होगा। 750 में यहां पर फिर अलग लड़ाई है, 750 में 450 जीएस है, 300 का इंग्लिश गुजराती है। पीआई में 800 में 400 का इंग्लिश गुजराती है, 400 का जीएस है। देख रहे हैं, यहां वेटेज देखिएगा और यहां वेटेज देखिए, 50-50। 900 में 300 का जीएस है, ये इंग्लिश गुजराती है, बाकी 600 मार्क का एसए और जीएस1 जीएस2 है। हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि कोई एसओ बोल देगा और कोई डीवाईएसपी बन के बोल देगा कि इंग्लिश गुजराती पे ही भार रखना चाहिए। तो भाई पास किए हैं आप, हम भी एक शिक्षक हैं, हम भी समझते हैं इस चीज को। पांचों अच्छा होगा तो होगा, ना तो खाली गुजराती अंग्रेजी से होगा। देखिएगा लोग कहेगा अरे जीएस में सबको बराबर होता है। कैसे बराबर होता है भाई? नहीं लिखते हो तो न बराबर होता है। नहीं तो 2003 का हम बताते हैं आईएएस का रिकॉर्ड। मेरा स्टूडेंट केवल खुराना 1178 मार्क लाया था खाली मेंस में, रिटन एग्जाम में, समझे ना। जीएस का हालत खराब कर दिया था, 450 नंबर लाया था 600 में से, उस समय 600 का जीएस होता था। अब आप नहीं देख रहे हो, आपका रेंज बस उतने हैं। दिल्ली के वो 2-3 कोचिंग और बाकी गुजरात का गुजराती मैगजीन, तो क्या नंबर आएगा? वो आपकी गलती है। तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। यहां पर भी इंग्लिश का वेटेज 300 है तो जीएस का वेटेज 450 है, और उसमें पर्यावरण और वन ज्यादा पूछ रहा है। इस पर स्ट्रेटेजी इसीलिए कह रहे हैं कि सुनिएगा, जब सेकंड और थर्ड वीडियो आएगा, ये सब उसका झांकी है। ये होगा आपको मेंस का, रिटन का, और इसके बाद मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र 1 गुजराती भाषा में होगा, 2 अंग्रेजी में होगा। अब बाकी जो भी प्रश्न पत्र है ये तीनों, ये इंग्लिश और गुजराती दोनों में होगा। प्रश्न पत्र 3 यानी जीएस1, प्रश्न पत्र 4 जीएस2 और प्रश्न पत्र 5 जीएस3, ये गुजराती और अंग्रेजी दोनों में होगा। और आप इस प्रश्न का जवाब गुजराती या अंग्रेजी दोनों में दे सकते हैं। मुख्य लिखित परीक्षा में आयोगे नियत करे लायकी गुण मेलवानार जग्याओं आश्रय 3 गुना उम्मीदवार को इंटरव्यू में बुलाएगा। यानी 51 का 3, मात्र 153 लोग इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे। मेरिट सोच करके देखिएगा। इसमें इंग्लिश गुजराती या जीके जो करता है ना, हम लोग देख रहे हो 17 से करिए रहा है मेरे भी क्लास का, वो अंग्रेजी या गुजराती कर रहा है और हर बार फेल हो जा रहा है। सीधा जो है सबको पढ़ना है, किसी को वेटेज नहीं देना है और किसी को छोड़ नहीं देना है, बस ध्यान रखिएगा। अब आइए इसमें एक क्लियरिटी सुनिएगा। आ कसौटी मां यानी इंटरव्यू में उम्मीदवार हाजिर रहबू फर्जियात, हाजिर ना रहनार उम्मीदवार आखिरी पसंदगी में नहीं लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल कि आपने 750 में मान लीजिए मार्क्स ले आया 415 रिटन में ही केवल। अब 100 मार्क का इंटरव्यू है, आप हाजिर नहीं हुए, 0 मिलेगा तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन आप अगर हाजिर ही नहीं हुए और ऐसे एब्सेंट लिख दिया गया, आपका मार्क बना 415। लेकिन यदि मान लीजिए कि आयोग के द्वारा निर्णय हुआ, निर्णय मतलब 51 सीट तक आने में ऐसा हुआ कि 365 और 35, 400 मार्क पर मान लीजिए फाइनल सिलेक्शन हो गया और आप खाली रिटर्न में 415 लाए हुए हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप इंटरव्यू में हाजिर नहीं होते हैं तो आपको हाजिर होना पड़ेगा। मेरा ही एक विद्यार्थी है जिसको 2017 में 56वां रैंक आया था। अरे कितना बार अक्षर व्यास का नाम ले बता रहे हैं, उसको 441 केवल रिटर्न में ही था उस साल, और टोटल मेरिट 462 या 63 था, बोल रहे हैं इतना ही था, यानी 20 नंबर पे उसका सिलेक्शन था। तो उसको इंटरव्यू में भी ठीक ठाक रहा तो 56 रैंक लाया। और वो जब सीटीओ का एग्जाम देने गया था उसमें उसका 14वां रैंक था। तो रिटर्न में जितना मार्क उसको आया था ना, उसमें अगर 0 नंबर जोड़ते हैं हम लोग तो उसका 76वां रैंक बनता है मार्क के हिसाब से, अगर इंटरव्यू में कुछ नहीं देता तो भी।
लेकिन इस परीक्षा में अगर आप हाजिर नहीं होंगे तो उस नंबर पे भी आपका सिलेक्शन नहीं, हाजिर तो आपको होना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ें। अब आपका टोटल इंफॉर्मेशन पूरा हो गया। अब बारी है, मेरे मुंह से पहली बार हो रहा है, क्योंकि हम आज तक आपको भारत डिजिटल क्लास से जो भी मिला कि तोमर सर के द्वारा ये वो सब हमीर ही तय करता है। मेरा एक नेचर है कि हम जिस पे भरोसा करते हैं अंतिम तक। हमीर कहता था कि सर इतना तुम्हारी मर्जी। हम कभी भी, हम अपनी लड़की का भी फीस स्कूल में कम कराने नहीं गए हैं कभी, इतने परिचय होने के बावजूद। हम जानते हैं, हम भी अपनी बेटी को डीपीएस में पढ़ाए हैं, हालत खराब हो जाता है फी भरने में, लेकिन हम जानते हैं कि सर्विस नहीं मिलेगा अगर हम उस हिसाब से मूल्य नहीं देंगे। तो एक बात, वो फ्री करके आज इसी कारण से इस फील्ड का ये हाल हुआ है। हम अपनी लड़की के लिए, और हमेशा बोलते हैं, मेरी बेटी 11वां में है, और कभी नहीं हम कहते हैं कि स्कूल बहुत अच्छा करके देता है या कोई कोचिंग अच्छा करके देता है। बच्चे में दम होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि आज जो बता रहे हैं ये तोमर सर अपने जीवन में लाइफ में पहली बार ये फी गिरा रहे हैं। गिराने का मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, और ये अंतिम है, इससे नीचे कभी नहीं होगा। और तोमर सर इससे नीचे हम भरोसा भी नहीं करते हैं। लेकिन दीपावली का समय था, हमको हमीर फोकस काफी फोर्स किया कि सर आप इसमें एक बार कुछ कर दीजिए लड़के को। तो ध्यान दीजिएगा, आज है तारीख, मतलब हम जो शूटिंग कर रहे हैं 13, और आप तक जब पहुंचेगा तो ये तारीख होगा 14। तो 14 तारीख से ये जो आप सुन रहे हैं से लेकर के 18 तारीख लाभ पांचम भी नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। 18 तारीख तक ये वैलिड है, और एकदम पानी के भाव आपको दे रहे हैं। और ये बिल्कुल नहीं समझिएगा कि मेरा ऐप नहीं खरीदा है, हमें कोई मतलब ही नहीं होता है इससे जीवन में। आज भी मेरा अपना जो है, हम वो बढ़ के 500 नहीं कह देंगे, मेरा जो अपना पैकेज है उसमें 100 लोग हैं, 1-2 नहीं है। ये जो 15,997 फीस देख रहे हैं ना, उसमें 100 लोग हैं रजनीश तोमर के उस 4 वाले में। इसलिए हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हम ऐसा ही शर्ट पहनते हैं, हवाई चप्पल पहन के घूमते हैं, हमको बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि जितना देखिएगा मार्केट में भी आया हुआ है, क्वालिटी है नहीं। 1500 में आप ही देंगे, 2000 में दे देंगे, 4000 में जीपीएससी दे देंगे। अरे खरबूजा बेचने निकले हो क्या? जीपीएससी का तुम समझ रहे हो कि क्वेश्चन कहां से आता है और कितना घंटा पढ़ाना पड़ेगा? वो 4000 में हो सकता है, ये खरबूजा बेचने निकले हो क्या? तो ध्यान रखिएगा, नहीं हो सकता है। आपको ये 8000 में हम ये पैकेज दे रहे हैं। एकदम लूट है, लूट सको तो लूट लो। 18 तारीख के बाद कोई आदमी फोन नहीं करिएगा हमको, और आप जानते हैं कि हम फी कम नहीं करते हैं, हमसे नहीं बात करिएगा। और ये बात हमीर से ही करिएगा, हम हट जाते हैं। ये लीजिए 8000 है 18 तारीख तक, और इससे कम तोमर सर का ऑफर जीवन में नहीं आएगा। हाँ, इसके साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको भारत डिजिटल क्लास का जो 7777 वाला पैकेज है, अगर उस पर कोई अलग डिस्काउंट चल रहा है और वो मिल रहा है तो ओके, वरना आप इसके साथ अगर उसको जोड़ेंगे तो वो 8000 और 7777 मिलके 15777 बनता है। वो एक अलग ऑफर है, दोनों जुड़कर नहीं है। ये मेरा अपने पैकेज का है कि मेरे पैकेज पे 8000 का आपको मिल रहा है, केवल और केवल 18 तारीख तक। 50% डिस्काउंट दिए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऐप 15,997 में भी जिस लड़के को समझ में आता है कि तोमर सर 90,000 फी लेते हैं, आज हम बोल रहे हैं खुलकर आईएएस में, और जीपीएससी में 70,000, वो ये 8,000 में आएबे नहीं करेंगे इस फील्ड में, नहीं जरूरत है। तो ध्यान रखिएगा, ये लास्ट है, आप इसका लाभ उठा लीजिए।
आपको 100 घंटे एक विषय में क्लास मिल रहा है, 4 विषय मिला के 350 घंटे, ये कोई नहीं पढ़ा पाएगा। अभी 19 तारीख तक हम एकदम जम के शूटिंग करके भूगोल में डालने जा रहे हैं। भौतिक भूगोल में मैं अभी तक मैं 40 घंटे क्लास ले चुका हूं और अभी मैं नदी और उस नदी के अपरदन निक्षेपण से उत्पन्न स्थलाकृति तक ही पहुंचा हूं। अभी पूरा वायुमंडल जलमंडल बाकी है। मेरे जलमंडल में नदी नहीं शामिल है, ना ही मेरे जलमंडल में झील शामिल है, ध्यान रखिएगा। मेरे स्थल मंडल में शामिल है। वो महानतम टीचर को यहीं से नमस्कार करते हैं हम। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये आप देख लीजिएगा, आपके ऊपर है, इससे बढ़िया पैकेज नहीं मिलेगा। अब दूसरे मेरे क्लास का इंतजार करिएगा, एकदम अंदर जा करके झिनावट के साथ सिलेबस का व्याख्या करेंगे और जिसमें बता देंगे ना कि इतना क्वेश्चन आएगा, वो उसके ही आसपास घूमेगा। आपको बस उस हिसाब से पढ़िए और बस कृष्ण भगवान का नाम याद करके ऐसे ऐसे डफली बजा के इंतजार करिए, करताल बजाइए और देखिए कि आप होते हैं कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।